Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yeah. Sir, yesterday you told you'll First, explain. which one, beta? Sir, that pulley problem. Yeah. आप late आया था ना? Sorry, sir, but Yes. Yeah, I'll explain. So, discuss about your doubt. So, in this question is given that if sine alpha is equal to 1 by root n and sine beta is equal to 1 by root 5, then alpha plus beta is. So, RM is to find the value of alpha plus beta. So, we can use that equation sine of alpha plus beta. So sine a plus b के लिए equation है, that is sine a cos b plus cos a sine b. Okay. So sine alpha का value question में दिया है 1 divided by a root of 10. So we can find out what about the value of cos alpha over here. Okay. Because if sine alpha is given as 1 by root 10, so if you are constructing a right angle triangle and if this angle is alpha, and this is 1 and this is a root 10. So according to Pythagoras theorem, we can write this will be equal to under root of 10 ka square minus 1, that is root 9, which is 3. So we can write the value of cos alpha over here is adjacent side divided by hypotenuse, that is root 3 by 10. And the value of cos beta, is given as nothing but we can find out the value of cos beta from the sine beta. Sine beta is given as 1 divided by root of 5. So this will be equal to 4 minus 4 ka root, that is 2. So we can write the value of cos beta is 2 divided by root of 5. And sine beta, it is given question as 1 divided by root 5. So you can observe that over here, it is 5, 2 plus 3, that is 5 divided by under root of 10 into root 5. तो root 5 और a 5 का root 5 आएगा. इसको आप root 5 into root 2 लिख सकता है. So we can write this will be equal to 1 by root 2. So if sine alpha plus beta is 1 by root 2, that means alpha plus beta should be equal to 45. Sine 45 is 1 by root 2. So 45 means we can write pi by 4. Got it? Then next one, it is given that if cos square alpha is equal to cos square beta plus cos square gamma plus 3, then sine square alpha is equal to sine square beta plus sine square gamma plus something, let's say plus x. So RM is to find out what about the value of x over here. So we know that this cos square alpha is equal to cos square beta plus cos square gamma plus 3. So we can write, we know that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So instead of cos square theta, we can write it is 1 minus sine square alpha. And this can be written as 1 minus sine square beta. And this can be written as 1 minus sine square gamma plus 3. So we can write the value of this one and this one get cancelled. अभी हमने अगर ऑप्शन में देखो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इसमें दिया है, पॉजिटिव में दिया है, तब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा and 2 plus 3 is 4, so this will be equal to minus 4 over here. So we can write sin square, तो जो x का वैल्यू है -4 पे आना चाहिए, राइट? ऑप्शन में नहीं दिया है. 1 minus, ऑप्शन में नहीं दिया. प्लस 3 plus 1. सर +4 आएगा. नहीं -4 है. +4 आएगा, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया ना.
the entire हाँ equation. okay okay. तो अगर वो प्लस समथिंग पूछा तो इट शुड बी -4 पे आना चाहिए. इट्स नॉट गिवन इन ऑप्शन. Should be like -4. Sir, we can add both the equations. मतलब नहीं, इसका फॉर्मेट में इसको लिखा है sin square Yeah, alpha sir. No, sir. is We can equal try to by sin adding square. both the equations. No, I think they are asking the value of x over there. Like, alright. Next one is given that if a vector, a1 vector and a2 vector are two non-collinear, मतलब same direction में नहीं है, non-collinear unit vectors. तो a1 और a2 का जो non-collinear unit vectors and under magnitude of a1 plus a2 is √3. तो a1 का magnitude 1 है, a2 का magnitude भी 1 है, and there is some angle between them. So let's say the angle between this a1 vector and a2 vector is equal to theta. And Rm is to find out what about the magnitude of a plus b दिया है. So we know that the value of a plus b is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of angle between them, let's say cos theta, is equal to r का square. So we can write √3 दिया over here. Thus this will be equal to 3. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? a1 and a2 are unit vectors. तो a1 का magnitude 1 है, a2 का magnitude भी 1 है. So 2 into 1 into 1 into cos theta will be equal to 3. So we can write this 2 cos theta should be equal to 1, 3 minus 2. So you can write the value of cos theta should be equal to 1 divided by 2. So the value of theta should be equal to 60 degree. So cos 60, we can take it as an event 1 by 2. Got it? Now we can find out what about the value of a vector minus a1 vector minus a2 vector dot 2a1 vector minus a2 vector का वैल्यू फाइंड आउट करना. तो हमने एक एक टर्म को डॉट प्रोडक्ट कर रहा. सो a1 वेक्टर डॉट 2a1 वेक्टर दैट इज 2 into a1 a2. a1 का जो मैग्नीट्यूड है 1 है, तो 2a1 स्क्वायर into cos 0. a1 और a1 का बीच 2a1 का बीच में एंगल. सो यू कैन राइट द आंसर विल बी इक्वल टू 2 because a1 का मैग्नीट्यूड भी 1 है. Then we can go for a1 dot minus a2. So that will get minus a1 a2 cos of angle between them cos theta. Now we can go for minus a2 vector dot 2a1 vector, that we can take as minus 2 a1 a2 cos theta. Now we can go for minus a1 minus a2, that is plus a2 square, sorry, minus a2 dot minus ये भी a2, two that is आ minus, गया ना? sorry, plus a2 square Plus into 2. 1. So this will be equal to 1. Got it? So we can write, and अभी हमको already पता है जो cos theta का value 1 by 2 है. I can put the value of cos theta over here. तो 2 हो गया, and a1 और a2 का magnitude 1 है. तो 1 minus cos theta minus 2 cos theta plus 1. So we can write this will be equal to this 3 minus 3 cos theta. So this we can write 3 minus 3 into cos theta is 1 by 2. So 3 minus 3 by 2, that is 3 by 2. Got it? दीप्ति छात्र को अपने कुछ क्वेश्चंस भेजा है और क्वेश्चन का उधर क्लास में डिस्कस नहीं किया है. आपका डाउट कुछ पेंडिंग है तो रिमाइंड कर दो, ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नॉट ओनली 1 200 200 नहीं है. Hello, sir. तो बोलो बेटा, Sir, in that बोलो previous, बेटा. can Yeah, you previous tell question. that A1, A2 went? Like, how did How A1 A2? was like in the next step? You didn't write A1, A2. You just saw. नहीं A1 और A2 का मैग्नीट्यूड 1 है बेटा. क्वेश्चन में पहले दिया है A1 and A2 are unit vectors. तो A1 का वैल्यू भी 1 है, A2 का वैल्यू भी 1 है. Okay, sir. इसलिए वो नहीं देख रहे हो. So can you explain that log concept, logarithmic term that? Yeah, 1 minute.
तो पुल्ली सिस्टम में ऐसा था, लाइक four figure shows a system of 4 pulleys with two masses MA, which is 3 kilogram, and 4 kilogram at an instant, force acting on block A if block B is going up with an acceleration of 3. तो जो block B है वो 3 से upward direction में acceleration कर रहा है. So if you are considering this pulley system, so this block 3 is going to move in up, block B is going to move in upward direction with an acceleration of 3, going up with an acceleration of 3, and pulley Q is going down with an acceleration of 1, and this pulley Q is going down with an acceleration of 1. So we can find out what about the acceleration of this block A over here by using constraint relation. तो अभी आप देख सकते हैं A अगर 3 से नीचे जा रहा है, 1 से नीचे जा रहा है, तो A string भी 1 से नीचे जाएगा. A fixed pulley है तो A string 1 से ऊपर जाएगा. तो that means this is going to move upward direction with an acceleration of 1. इसका 3 है, तो we can find out like we can draw the constraint relation. इसमें टेंशन को नेग्लेक्ट किया है क्या? इसमें टेंशन को नहीं, टेंशन तो है, टेंशन नेग्लेक्ट नहीं किया है. ओके टेंशन विल बी देयर. ओके, तो अगर आपने टेंशन का वैल्यू आप ड्रॉ कर सकता है हर एक में टी 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 करके, बट सेम स्ट्रिंग है तो हर एक पॉइंट में टेंशन का वैल्यू भी सेम ही रहेगा. सेम स्ट्रिंग ही पास कर रहा ना. ओके सर. नाउ वी कैन राइट ओवर हियर, अगर इसका पुल्ली का आप देख रहा है तो इसके ऊपर 4 एक्सर्ट कर रहा है, 1 सॉरी एक्सेलरेशन 1 है, एंड ये पुल्ली का एक्सेलरेशन 3 है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोग x कंसीडर कर. So you can write the constraint relation between them, that is x plus 1 divided by 2 should be equal to 3. So we can write x is equal to 6 minus 1, that is equal to 5. तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन रहेगा 5 अपवर्ड डायरेक्शन. अभी हम लोग ए पुल्ली को देखो, ए पुल्ली डाउनवर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1, एंड ए साइड का जो स्ट्रिंग है वो अपवर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5. And so we can find out what about the acceleration of this string over here. Let's say this is x in downward direction. We can write the equation for this, that is x minus 5 divided by 2 is equal to 1. No, downward go positive consider kar raha. So you can write this x will be equal to nothing but 7. The x ka value is 7 hoga. So we can consider this is going to move downward with 7, and ye hai ye to 0 hai because it is attached. So we can write this is going to move downward direction with an acceleration a, where a is equal to 0 plus 7 divided by 2. तो इसका acceleration होगा 7 by 2. Got it? Sir, बोलो बेटा. sir, in the solutions, they Hmm. have done 2 into xa plus 2xb minus xq. Why did it do minus xq? I didn't understand that. उसमें जो x दिया है it may be displacement. Yes, it's displacement. तो So can you explain by that method also once? displacement का acceleration मतलब we can write it, हमने क्या लिखा है, a1 plus a2 divided by 2 Yes. is equal to acceleration of pulley. उसका velocity का term लिख सकता है, v1 plus v2 divided by 2 is equal to velocity of pulley. Displacement का term लिख सकता है, x1 plus x2 divided by 2 is equal to displacement of pulley. ऐसा, इसलिए 2 Okay. लिखता है. Yeah. तो अब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी, वेलोसिटी करें तो एक्सेलरेशन. हमको कौन सा टर्म दिया वो टर्म हम लोग लिखिएगा ऐसा. Sir, I did that, but I'm not getting 2xa plus 2xb minus xq. And what is 2xa, what is 2xb, मतलब क्या है वो सब. 2xa is the acceleration of the block A, and 2xb is the acceleration of the block B, and xq is the acceleration of the pulley which is moving downward. या वो तो वही उसके हिसाब से हमने लिखा ना इसको. मतलब 3 को 1 को लिखा, मतलब आपको वो एक्सेस का इसका टर्म में लिखना है. Yes. तो यही लिखेगा ना, हमने ओनली नंबर चेंज करेगा ना बेटा. Sir, if we consider that the ठीक A है, is ठीक. moving. 1 मिनट. तो b का वैल्यू हमने एक्सेलरेशन क्या लिया है, xb मतलब क्या लिया उसको आपने, व्हाट B सिंबल को यू आर यूजिंग. 2xb. xb, yeah, xb. xb किधर, अपवर्ड और डाउनवर्ड? Sir, it is moving upward. अपवर्ड. तो इसको आप अगर xb लिया है, और इसको क्या लिया है, xq लिया है डाउनवर्ड. Yeah. तो इफ यू आर टेकिंग दिस वन एज xq डाउनवर्ड, तो क्या सिंपली चेंज करेगा ना बेटा. अगर ये नीचे जा रहा है
तो ये नीचे जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो हम लोग इसको एक्स क्यू लिखेगा. Okay. देन विल राइट द इक्वेशन फॉर दिस पुल्ली. तो ये पुल्ली में देखो, ये साइड में जो स्ट्रिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा एक्स क्यू से. ये डायरेक्शन में जो मतलब ब्लॉक है और पुल्ली है, दैट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एक्स बी, और ये साइड का पता नहीं है. लेट्स से दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स. Yes. So you can write the equation for x over here, that is x plus xq divided by 2 is equal to xb. Yes. So you can write x is equal to 2xb minus xq. Got it? Okay. तो ये अगर x से ऊपर जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है अभी हम देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या है. तो विल ड्रॉ दी लाइक कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉर दिस पुल्ली. ये जो पुल्ली है वो डाउनवर्ड में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एक्स क्यू, एंड ये जो स्ट्रिंग है दैट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एक्स. एंड ये जो स्ट्रिंग है इसका हमको फाइंड आउट करना है. लेट्स से दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y ओवर हियर. तो हम लोग Yes. इसके लिए इक्वेशन लिखेगा y minus x divided by 2 is equal to x cube. Got it? So we can write this y is equal to nothing but 2x cube minus x. So we can write y is equal to nothing but 2x cube minus 2x cube plus x. Okay. Yeah. And Sir, x why का are value we क्या था? dividing by 2? If a pulley is displaced by a distance, अगर पुल्ली को कोई भी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट Average करना रहता है है ना बीच वाला का. तो दो स्ट्रिंग का डिस्टेंस x खाली होना चाहिए, मतलब x/2 खाली होना चाहिए. मतलब अगर मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है व्हिच इज पासिंग थ्रू अ पुल्ली, अगर लेफ्ट साइड का जो स्ट्रिंग है अगर हमने x का डिस्टेंस फ्री कर दिया और y साइड मतलब राइट साइड का जो स्ट्रिंग है उसको y डिस्टेंस नीचे कर दिया, तो मान लो स्ट्रिंग फ्री हो जाएगा अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस वाई. पूरा मिला के x और प्लस y का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गेटिंग फ्री. तो पुल्ली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना स्ट्रिंग फ्री हो गया उसका आधा, बिकॉज राइट साइड में भी स्ट्रिंग चाहिए, लेफ्ट साइड में भी स्ट्रिंग चाहिए. दिस इज गोइंग टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 2. समझो? Okay, sir. को राइट साइड में भी स्ट्रिंग चाहिए, लेफ्ट साइड में भी स्ट्रिंग चाहिए. तो पूरा ब्लू कलर में जो दिखा रहा है दैट इज द स्ट्रिंग गेटिंग फ्री. x प्लस y का स्ट्रिंग फ्री हो गया, बट x प्लस वाई बाई 2 एक साइड पे, x प्लस वाई बाई 2 एक साइड पे, तो पुल्ली नीचे जाएगा x प्लस वाई बाई 2, इसलिए वो 2 आता है. तो 2x क्यू प्लस x का वैल्यू क्या हो गया 2xb माइनस माइनस x क्यू. ये तो माइनस x क्यू था, राइट, x क्यू. So you can write this will be y is equal to, अब लिख सकता है x क्यू माइनस 2xb. Yes. अभी हम लोग फिर से इसका डायग्राम ड्रॉ करके उसके लिए इक्वेशन लिखेगा. तो ये पुल्ली में जो पॉइंट है दिस इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, उसको हमने y कंसीडर किया था. ये तो मूव नहीं कर रहा तो इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो we can find out what of the value of acceleration of this xa. So xa will be equal to 0 plus y divided by 2. So this we can take as y by 2. So xa is equal to y is x cube minus 2xb divided by 2. So we can write this is 2xa is equal to x cube minus 2xb. Okay. Got it? So this method is more इसमें longer वैल्यू than दिया है that. तब ऐसा कुछ देखने का. तो नहीं दोनों मेथड सेम है. एक में हमने वैल्यू पुट किया, एक में वैल्यू पुट नहीं किया. x और x की वैल्यू 2 3 और 1 दिया था. Yeah. So No we'll value. differentiate this and get acceleration. या नो नीड टू डिफरेंशिएट, बिकॉज आप मतलब x से में रिलेशन है तो उसको va लिख सकते हैं या a लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, चलेगा. Okay. मतलब प्रैक्टिकली हम लोग डिफरेंशिएशन करेगा तो आता है. Sir, so when acceleration is given, we can directly use this one, right? The first method. या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, कोई भी केस में आप ये रिलेशन यूज कर सकता है. Yes, sir. सर ये क्वेश्चन समेशन ऑफ टी डॉट ए से भी हो सकता है.
Yes, sir. I हाँ tried with that. टी डॉट से भी आप कर सकता सर है, एक बट उसमें मिनट क्या प्रॉब्लम है? टेंशन मार्क करो ना सर, क्योंकि एक साइड ऊपर टी आ रहा है, नीचे दो बार टी आ सेम रहा वही है। बोला स्ट्रिंग ना, है तो तो ऐसा टेंशन सेम रहेगा. या सेम स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगा. अगर पुल्ली मासलेस है, ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू मतलब 0 हम लोग करना पड़ेगा. बट ओवर हियर पुल्ली का मास के बारे में कुछ बोला नहीं है. ओके, तो इसलिए ओवर हियर अगर हमने या इसलिए उसका एक्सेलरेशन दिया है, तो अगर इसका जो टेंशन है उसका हमने टी, अगर टेंशन लिखेगा तो इधर क्या टी लिखेगा, इधर भी हम लोग टी लिखेगा, इधर भी हम लोग टी लिखेगा, इधर भी टी लिखेगा, तो इसमें 2t होगा. इसमें देखो इसका टी हो रहा है, बट तो ये सर पुल्ली वही के कैसे ऊपर आप पॉसिबल देखो. हेलो, आई एम नॉट, पहले सुनो कि क्या बोल रहा है. अगर एक पुल्ली का मास 0 है, if mass of pulley is equal to 0, then we are writing the value of net force on that pulley should be equal to 0. Okay, because force is equal to mass into acceleration. Correct. Over here, this pulley may have some mass. इसलिए इसका जो टेंशन का वैल्यू मतलब t अपवर्ड डायरेक्शन में और 2t, इसका वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली 2t पे नहीं लिख रहा है. समझा? यस सर। टेंशन तो आप टेंशन, एक मिनट, टेंशन तो आप t लिखना है, मतलब हर एक स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो आप टेंशन लिखे तो ऐसा ही लिखना है. ओके, अभी इसमें दो केस हो सकता है. लेट्स से इन द फर्स्ट सिचुएशन, अगर इसके ऊपर जो टेंशन है टी आ रहा है, हम लोग लिखे लिखे आ रहा है, तो फाइनली मान लो इफ यू आर गेटिंग इट समथिंग लाइक दिस, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. वन पॉसिबिलिटी इज इफ द मास ऑफ दिस पुल्ली इज इक्वल टू 0. अगर मास 0 है तो t इन अपवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू t इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 2t. तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगा ओनली इफ t इज इक्वल टू 0. तो उसमें टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. देन ओनली net force acting on that string pulley becomes equal to 0. Next condition है if mass is not equal to 0, mass 0 नहीं है, okay, then we need to consider it like this. इसके ऊपर tension T exert कर रहा है, इसके ऊपर tension 2T downward direction में exert कर रहा है, और weight mg exert कर रहा है. तो इसमें मैंने net force को 0 नहीं लिखेगा, लोग क्या लिखेगा, T plus mg is equal to mass of this object into acceleration लिखेगा. समझा? यस सर। तो पहले हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर उसमें मासलेस कंसीडर करता है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग अगर t नेट 0 होने के लिए t होगा करके लिखता है. समझा? यस सर। Sir, so if they are not commenting anything about mass, then we should consider tension as 0. Yeah, if they are not saying anything that then we'll consider normally in general tension will be equal to 0. Okay, sir. So in the like 1 minute. So in the last part, we discussed about that pulley system, sorry, that block system. So अगर more than one block concept हम लोग use कर रहा है, then first we discuss how to solve the question. तो पहले हम लोग को क्या find out करना पड़ेगा, direction of friction find out करना पड़ेगा. Then we'll find out what about the value of like acceleration if they are moving together. So if there is a block of mass m1 over here, there is another block of mass m2 over here, which is kept on a smooth horizontal surface, then first we need to, and they will give that some force acting on m1 or m2. The first step, we need to find out the direction of friction. So to find out the direction of friction, we'll just consider 2 points over here, one point on m1 and another point on m2. So if there is no friction, m2 is going to move towards right. So sorry, m1 is going to move towards right. So m2 is going to opposite while exerting friction force along this direction. So m1 will exert equal and opposite friction force in equal and opposite direction. Let's say that is equal to F over here.
then we consider that in the second situation. The first situation is the direction of friction draw करना है. Second situation है, we don't know whether this M1 and M2 are going to move together or they are not. They may be move with a different acceleration. तो हम लोग assume करेगा they are going to move together. So we'll just consider it as a single system of mass M1 plus M2 and हम लोग इसके ऊपर force F exert कर रहे हैं. So we'll assume that they are moving together. So if they are moving together, acceleration of the system should be equal to M1 plus M2. Then on the third step, we'll find out what about the value of frictional force required for this acceleration. अगर if you're just considering block M2 के ऊपर एक ही friction force F exert कर रहा है, and if it is moving with an acceleration A, so we can find out the value of frictional force required, that is equal to M2 into A. Then on the fourth step, we need to find out the maximum value of friction, and maximum value of friction हम लोग find out करेगा by using that equation mu into normal reaction. तो maximum value of friction का value इसका जो applied force है, मतलब frictional force से ज़्यादा होगा, then we can say that they will move together. तो एक साथ move करने के लिए F चाहिए, and if the value of, so there are two conditions. If the value of F max, maximum possible value of friction, is greater than F, then both the blocks will move together with an acceleration. We just find out. Okay. And if अगर इसका उल्टा है, if the value of F max, maximum value of friction is less than F, एक साथ move करने के लिए कितना frictional force चाहिए, उतना friction provide नहीं कर पा रहा है, तो maximum possible value उससे भी कम है. That means this is the blocks they are not going to move together with same acceleration. They will slide, and if they are sliding on one another, then we can say that they will move with a different acceleration. हम लोग उसका acceleration भी ढूंढ सकता है. तो पहले एक कंडीशन को हम लोग चेक करना पड़ेगा ये सब स्टेप फॉलो करके. ओके, तो विल टेक सम एग्जांपल. एक मिनट. तो सर आपको ये दोनों सिचुएशन से दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों सिचुएशन से मतलब जब F max is greater and F max is less than, so तब क्या या इक्वेशन. तो अब एक दो डिफरेंट कंडीशंस हो गया. विल टेक सम एग्जांपल तो समझ में आएगा, वरना मैं कितना भी बोलो आपको आइडिया नहीं मिलेगा. एक मिनट. So can you show second point? So can you show second point? या 1 मिनट.
we'll take some numerical examples, आपको better idea मिलेगा, ठीक है? तो suppose if you are just the blocks are kept as on, and देखो जो first block है उसके ऊपर we are exerting a force of 100 Newton, and the acceleration of 20 kilogram block with respect to ground is, हमको फाइंड आउट करना है जो 20 किलोग्राम ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है. ओके, अभी हमको पता नहीं है कि वेदर दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर और नॉट, तो पहले जो कंडीशन है अब हम लोगों को देखना पड़ेगा. तो ऐसा जो भी ब्लॉक ऑन ब्लॉक क्वेश्चन रहेगा वी नीड टू फॉलो द स्टेप. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप में वी नीड टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. तो फर्स्ट आप इसका डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ड्रॉ करो. Try to draw direction of friction. ये जो म्यू इधर का फ्रिक्शन है, ये म्यू इधर का फ्रिक्शन है, ये म्यू इधर का फ्रिक्शन है, वो जीरो है, मतलब उधर फ्रिक्शन नहीं है. सर कर दिया. Yeah. Done, sir. तो फर्स्ट स्टेप है we need to draw the direction of friction. So direction of friction draw करने के लिए हम लोग पहले क्या करेगा? We'll assume that there are 2 points over here, and ये point towards right में जाएगा, तो friction is going to exert towards left. Let's say F1. Yes. तो इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स F1. अभी हमने फिर से 2 पॉइंट कंसीडर करेगा. बिकॉज ऑफ दिस F1 it will try to move towards right. तो ये इसके अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स F2. तो इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा F2. ये लास्ट जो सर्फेस इसमें फ्रिक्शन दिया ही नहीं है, so we can just consider that friction will be equal to 0. Okay, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. अभी सेकंड स्टेप क्या है? We don't know whether ये 10, 20, 30 एक साथ जा रहा है या 10, 20, 30 डिफरेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हैं कि नहीं. ओके, तो हम लोग पहले क्या अज्यूम करेगा? दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर, ऐसा अज्यूम करेगा. ठीक है, कोई भी सिचुएशन में सेकंड में हम लोग मान लेगा दिस सिस्टम, द एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू मूव टुगेदर. तो आप पूरा सिस्टम को, मतलब पूरा को एक सिस्टम जैसा कंसीडर करो. तो उसका मास क्या हो गया? 60 का मास हो गया है ना. 30, 50, 60 का मास हो गया. एंड हम लोग उसके ऊपर टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 100. Sir, बोलो बेटा. sir, but how will we know that F max is greater than F? We'll calculate it. Sir, so how can we assume that these are moving together? We don't know they are moving together or not. We are checking whether they are moving together or not. Okay. So assume that the system is moving with an acceleration a, and ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता, हमको पता नहीं. हम लोग चेक कर रहे हैं सही है कि नहीं. तो उससे पहले हमको पता नहीं है कि एक साथ जा रहे हैं कि एक साथ नहीं जा रहा है. तो अभी भी हमको पता नहीं है एक साथ जा रहे हैं कि नहीं. तो ढूंढना पड़ेगा. तो अगर एक साथ जाएगा तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा 100 डिवाइडेड बाय 60, और यू कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाय 3 एक्सेलरेशन से जाना चाहिए इफ दे आर मूविंग टुगेदर. ओके, अभी देखना है इफ दे आर मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन, तो उसके लिए उसका वैल्यू क्या होना चाहिए. ठीक है, अभी आप देखो इफ आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 10 किलोग्राम ब्लॉक. अगर हम लोग खाली 10 किलोग्राम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, तो जो 10 किलोग्राम ब्लॉक को देखो उसके ऊपर टुवर्ड्स राइट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 100 न्यूटन, टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F1, and we assume that it is going to move with an acceleration of a, that is 5 divided by 3. ठीक है, ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता, हमको पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा. ओके, तो देखना है a 5/3 एक्सेलरेशन से जाने के लिए जो F1 है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए. ओके, so we can find out, we can write the equation for this, that is 100 minus F1 should be equal to m into a. m का वैल्यू हो गया 10, a का वैल्यू हो गया 5 divided by 3. समझा? So we can find out what about the value of this F1 is required. So F1 will be equal to nothing but 100 minus 50 divided by 3. Got it? So we can write the value of F1 should be equal to 300 minus 10, that is 250 divided by 3. तो एक साथ मूव करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 250/3 होना चाहिए, तभी तो एक साथ वो मूव करेगा. ये समझ में इधर तक? तो Yes, 250/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 83 के आसपास आएगा. ठीक है, 83.33 समथिंग. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 83 होना चाहिए. अभी हम देखते हैं उतना फ्रिक्शन फोर्स ए सरफेस एक्सर्ट कर पाएगा कि नहीं. तो हम लोग देखेगा F1 मैक्स का वैल्यू कितना है.
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fn max? Fn max कैसे ढूंढना है? म्यू इनटू n से ढूंढना है। into n. तो ये हमेशा याद रखना है, कौन सा सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन है, वो कौन सा पॉइंट में फ्रिक्शन फाइंड आउट कर रहा है, वो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन देखना है, बिकॉज over here we are going to find out the friction force in between these two surface. तो ये सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्सर्ट कर रहा है वो देखना है। सरफेस में 10 किलोग्राम आएगा तो उसका 100 न्यूटन का वेट एक्सर्ट कर। बट अगर आप ये सरफेस देखो, इसमें क्या होगा, दोनों ब्लॉक का वेट आएगा, 10 का भी आएगा, 20 का भी आएगा, तो इधर 300 का नॉर्मल रिएक्शन है। बट अगर आप ये सरफेस देखो, उसमें पूरा का वेट आ रहा है, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा? 600 का नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। जो Fn is acting on the surface, तो ये surface का ही हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन देखना है। तो we can find out the value of mu का वैल्यू भी दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया है? 0.5 दिया है। तो mu का वैल्यू है 0.5 एंड नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना था? 100 का। तो देखो कितना मिल रहा है हमको आंसर, 50 न्यूटन मिल रहा है। समझ में आया? तो एक साथ मूव करने के लिए 83 तो चाहिए, बट फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना एक्सर्ट कर रहा है? 50 एक्सर्ट कर सकता है। 50 तो एक साथ मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। सो दे आर नॉट गोइंग टू मूव टुगेदर। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 5/3 नहीं होगा। ठीक है, तो उतना तो मिल जाएगा। फिर आगे एक्सेल एक्सेलरेशन कैसे ढूंढना है, दैट विल डिस्कस। ओके, डाउन दिस वन, ये पॉइंट तक लिख दो। सर बोलो बेटा। सर फिर वो 20 kg का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 उसका क्या करना है फिर? उसको करना है अभी क्या कि अभी हमको ये समझ में आया कि 10 और मतलब ये दो सिस्टम एक साथ तो मूव नहीं करेगा, उतना तो समझ में आया। हाँ सर। अभी एक साथ मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन का फोर्स ना, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, तो हमको F1 का वैल्यू मिलेगा। फिर F1 का वैल्यू से हम लोग फिर से ढूंढेगा कि वेदर ये जो 20 किलोग्राम है उसका एक्सेलरेशन क्या है। ओके समझा? हाँ वो सर। आगे बताता हूँ, अब अभी इधर तक लिख दो। ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन में हमको पता नहीं चलेगा whether they are going to move together or not। तो पहले हमें हर एक सिचुएशन में ढूंढना पड़ेगा। तो सर इससे हम ये कंक्लूड कर रहे थे कि दे both the blocks will move in different time intervals, correct? हम लोग चेक कर रहे हैं whether they are going to move together or with sliding with different acceleration। सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है कि डिफरेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। सेम एक्सेलरेशन से जाने के लिए 83.3 का फ्रिक्शन चाहिए, बट F1 उतना एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ सर। फ्रिक्शन इज एबल टू एक्सर्ट ओनली अप टू 50, तो एक साथ मूव नहीं करेगा। तो जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया है 5/3 है, वो गलत है। वो एक्सेलरेशन से वो एक मूव कर नहीं करेगा। Sir, if the F1 will be 83, then they will move together. Yes, they will 83 या 83 से कितना भी ज्यादा है तो चलेगा। F1 max should be greater than F1, तो एक साथ जाएगा। एंड फ्रिक्शन फोर्स जो 83.3 रहेगा, बट अभी फ्रिक्शन फोर्स 50 तक ही एक्सर्ट कर सकते हैं, तो स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 50 होगा। ओके, Yes, sir. लिख लिया।
ओके या अभी हम देखते हैं व्हाट अबाउट दी, अभी हमको समझ में आया कि एक साथ तो मूव नहीं करेगा, तो देखते हैं 10 का एक्सेलरेशन कितना है। 10 का एक्सेलरेशन एक्चुअली पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं सो दैट विल गेट अ आइडिया अबाउट व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ 10, वो उसको कैसे ढूंढता है। तो अगर आपको 10 का ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, 5/3 तो नहीं है, इतना तो समझ में आया। तो जो 10 किलोग्राम ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 100 टुवर्ड्स राइट, एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो 100 का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टुवर्ड्स राइट पे, और F1 फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो F1 का वैल्यू होगा दैट F1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। अभी देखो इसमें दो आंसर मिल रहा है, 83.3 मिला है, बट वो नहीं है बिकॉज एक साथ मूव करने का एक्सेलरेशन है। तो F1 कैन एक्सर्ट ऑलरेडी अप टू 50। तो स्लाइड करेगा तो दे आर दिस F1 का वैल्यू क्या रहेगा, 50 रहेगा। सो वी कैन फाइंड आउट ये Sir, 50 एक्चुअली से- कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। 50 से कम नहीं होगा बिकॉज स्लाइड कर रहा है। ओके, तो मतलब 50 से ज्यादा हो सकता है। 50 से कम हो सकता है, 50 से ज्यादा नहीं होगा बेटा। यस सर, हाँ हाँ। स्लाइड करेगा तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना है, उतना ही एक्सर्ट करेगा 50। अगर रेस्ट पे है, स्टैटिक का केस में 50 से कम भी हो सकता है, बट ऑलरेडी हमको पता है कि स्लाइड और है, तो क्या एक्सर्ट करेगा, 50 एक्सर्ट करेगा। ओके, यस सर। नाउ वी कैन राइट इसका एक्सेलरेशन क्या हम लोग ढूंढ सकता है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा 100 माइनस 50 50 by 10 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 किलोग्राम का ब्लॉक एक्सेलरेशन करेगा। ये समझ में आया? तो एक्चुअली जो 10 किलोग्राम का ब्लॉक एक्सेलरेशन है वो 5 होगा, बट आर एम इज टू फाइंड आउट ये जो 20 किलोग्राम ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो अभी जो सिचुएशन है दैट वी कैन राइट इट लाइक दिस, हमारे पास एक 20 किलोग्राम ब्लॉक है और एक 30 किलोग्राम ब्लॉक है। तो ये 20 है, ये 30 है। अभी इतना तो समझ में आया, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो तो 50 रहेगा। समझ में आया? अभी फिर से ये हो सकता है कि दिस 20 एंड 30 कैन मूव टुगेदर, 20-30 एक साथ जा सकता है। ओके, तो फिर से देखना है 20-30 अगर एक साथ मूव करेगा तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, समझा? तो 20-30 के ऊपर हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना था, F1 का वैल्यू 50 था, या 50 का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और इधर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा ये डायरेक्शन, उसको हमने F2 कंसीडर किया था, एंड तो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा F2, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं था, ये सरफेस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.25 दिया था, 0.25 दिया था। ये समझ में आया? अभी क्या किया हम लोग? यस सर। ओके, ओनली 20-30 को लेके कर रहा है, बाकी को छोड़ दिया। बाकी जो M1 है उसका फोर्स एक्सर्ट करे 20-30 पे, उसको 50 लिख दिया। अभी फिर से ढूंढना पड़ेगा वेदर दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर और नॉट। तो फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था। सेकंड स्टेप में हो गया एक्सेलरेशन व्हाइल अज्यूमिंग दीस टू ब्लॉक्स आर गोइंग टू मूव टुगेदर। अभी हमने ये पूरा मिला के एक सिस्टम कंसीडर किया, तो मास कितना हो गया, 50 हो गया, और फोर्स कितना है, 50। तो 50 डिवाइडेड बाय 50 वी कैन टेक इट एज नथिंग बट 1। So if they are going to move together, then the value of acceleration will be equal to 1 meter per second square. अभी देखना है ये 1 से मूव करने के लिए F2 का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस इधर ही कैन गो फॉर 30 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकता है, 20 का कर सकता है। 30 में देखो एक ही फोर्स है तो 30 ड्रॉ करना थोड़ा इजी रहता है। तो आप 30 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो 30 के ऊपर F2 टुवर्ड्स राइट एक्सर्ट कर रहा है, and we assume that it is going to move with an acceleration of 1. So F2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, m into a, that is 30 into 1. तो F2 का वैल्यू क्या, 30 न्यूटन होना चाहिए। अभी देखते हैं फिर से ये 30 न्यूटन F2 एक्सर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। So we'll go for F2 max. What is the maximum possible value of friction? वो क्या रहेगा, mu into n. तो ये सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन है, तो याद रखो वो 10 का ब्लॉक उसके ऊपर है, ठीक है। तो सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है, 300 है, एंड फ्रिक्शन का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.25 है। 0.25 मतलब 1/4, 1/4 into 300, समझ में? तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 75। तो बोलो एक साथ मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। एंड फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, 30 या 75, 30 30 फोर्स static friction. मैक्सिमम लिमिट 75 है।
मैक्सिमम वैल्यू 75 है, एक साथ मूव करने के लिए कितना चाहिए? 30 चाहिए। 30 तो न्यूटन। वो एक साथ मूव करेगा या 30 न्यूटन से एक साथ मूव करेगा, तो 20 जो किलोग्राम है उसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एंड 30 Sir, भी उसके साथ जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एंड 10 का normal एक्सेलरेशन क्या reaction should मिलेगा? be ऑलरेडी 400, फाइंड आउट किया 5। 400, right? नो, इसके ऊपर 10 का ब्लॉक रखा था ना बेटा, Yes. So तो 100. 30 का 100 प्लस 200 300। ये सरफेस में, ये सरफेस के ऊपर जो ब्लॉक रखा है उसका मास कितना है? 30 किलोग्राम है ना? हाँ. 30 Yes, yes. on this one। इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर। सर वो समझ में नहीं आ रहा 300 कैसे है, वो एक बार समझा दो ना। नहीं, कुछ नहीं है ये। अगर हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मास m1 है, Yes. तो ये सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? m1g आएगा ना। Yes. अभी दूसरा ब्लॉक m2 है, तो ये सरफेस में ये दोनों का मास वेट आएगा ना, m1 प्लस m2 का वेट आएगा Yes. ना। Yes. तो m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर तीसरा Okay. एक ब्लॉक है m3, तो इस सरफेस में क्या आएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। Yeah, got it. समझा? तो ये इसमें देखो हमने ऑलरेडी लिखा था कि ए सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? ओनली इसका वेट आ रहा है, Yes. Okay. कितना आ रहा है? 100। इसमें हाँ. ये दोनों 10 प्लस 20 का 30 का, Yes. Yes, इसमें sir. ये Got तीनों it. का 6 का 600। Yes, sir. Got it. सर 8 and 5 कैसे है आपको? 8 and 5 कैसे है? जाने कौन सा 5? सर वो लास्ट में लिखा ना आपने। वो ढूंढा ना हम लोग ने, एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलो। एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 ढूंढा था ना, के ऊपर फ्रिक्शन 50 था ना। हाँ सर। कैसे सर आया सर वो एक्सेलरेशन सर? कैसे सर आया वो? 10 किलोग्राम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। 10 किलोग्राम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ओके तो सर। 10 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर एक की फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, सॉरी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा था टुवर्ड्स राइट 100, टुवर्ड्स लेफ्ट में F1 का फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा था, उसका वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था 50। 50। यस सर। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 50 बाय 10 5। फाइन। यस सर, गॉट इट। ओके सर। सर सर, बोलो। so can you explain What that differentiation and integration for log? Yeah, सर अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होता तो एक और फ्रिक्शनल फोर्स आती थी ना। या एक और है, मतलब F3 भी लिखना पड़ेगा। हाँ तो फिर जब थर्ड वाले पॉइंट में F2 के साथ मींस जब अपन पूरा एक ब्लॉक कंसीडर करेंगे, जब एक लेफ्ट साइड में F3 भी आएगी ना। F3 भी आएगा, ऐसे ऐसे। तो पहले देखिएगा अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा है कि नहीं, ताकि वो मूव कर पाएगा। यस सर। तो जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है वो F अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाय m होगा। फर्स्ट जो हमने जो एक्सेलरेशन मूव फाइंड आउट करता ना वो वाला। हाँ सर समझो। हेलो सर। बोलो बेटा। सर बोलो आपका बोलो। इसलिए ऐसे ही पूछ रहे थे। डोंट वरी, जिंदा है। हाँ जी सर। हो गया, लिख दिया। हेलो सर। यस सर। Yes sir. या
लॉगरिथम का केस में like suppose if you like to find out the differentiation of logarithmic functions, like if y is given as log of x with base let's say b over here, तो हम लोग अगर dy differentiation of y find out कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशन है 1 by x into nothing but ln of b. okay? तो अगर इसका लॉगरिथम का फॉर्म में सॉरी y इज इक्वल टू इनटू बी ए भी आएगा, मतलब कौन सा ये जो dx का टर्म भी आएगा अगर हम लोग इसको y इज इक्वल टू अगर dy का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके तो समटाइम्स लाइक normally we'll find out what about the value of dy by dx. So dy sorry एक मिनट, this is 1 by x into 1 divided by ln of b. ठीक है, 1 divided by ln of b into dx. और you can write the value of अगर आपको dy by dx find out करना है तो dy by dx will be equal to 1 by x into 1 divided by ln of b. So this one is a way we'll differentiate a logarithmic functions. तो as an example, suppose question में ऐसा दिया है y is equal to log of x to the base 10. तो इसका आंसर आएगा dy by dx is equal to 1 by x into 1 divided by ln of 10. समझ में आया? Yes, sir. अगर ln of x का टर्म दिया है, that means if y is equal to ln of x दिया है, then the value of dy by dx is basically 1 by x into 1 divided by ln of, ln का meaning है this is log of x to the base e. So we need to write ln of e over here. And ln of e का value है वो 1 होता है. Anything to the same base will be equal to 1. So the value of dy by dx will be equal to 1 by x. समझ में आया? Yes, sir. ln x दिया है तो 1 by x ही है. Okay? अभी अगर इसमें कुछ फंक्शन इन फंक्शन दिया है, फंक्शन इन फंक्शन मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है y is equal to nothing but ln of 2x plus 3 ऐसा दिया है, तो हम लोग क्या करेगा, फर्स्ट इसको नॉर्मल x कंसीडर करके हम लोग डिफरेंशिएशन करेगा. सो द वैल्यू ऑफ dy by dx will be equal to 1 by x. x का जगह पे क्या लिखेगा 2x plus 3 लिखेगा. उसके बाद हमने कौन सा टर्म को x कंसीडर किया है उसको डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है. तो 2x plus 3 का डिफरेंशिएशन होगा 2. So the final answer will be equal to 2 divided by 2x plus 3. Got it? Yes, sir. अगर मान लो अगर इसको इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, 2 क्यों लिया सर वहाँ पे सर हम लोग ने 2 क्यों लिया? इसको ये जो कौन सा टर्म को हमने ये फंक्शन इन फंक्शन हो गया, तो कौन सा टर्म को हमने x कंसीडर किया है उसको डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है. Yes, sir, got it, sir. Okay, thank you, sir. तो इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शन इन फंक्शन आएगा तो अंदर का फंक्शन को फिर से लोग डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Got it? Okay, sir. Yes, sir, got it. अभी अगर हम लोग इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है, as the value of y is equal to as the value of differentiation of ln of x is equal to 1 by x dx. We can write integration of 1 by x dx is equal to nothing but ln x. तो 1 by x का टर्म है उसको इंटीग्रेशन करें तो वो ln x का टर्म मिलेगा. तो इंटीग्रेशन में इसका ऑपोजिट. Got it? Yes, sir. इधर भी अगर आपको इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x इंटीग्रेशन मतलब हर एक चीज को हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है. एक्चुअली विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन उसको ही हम लोग उल्टा इंटीग्रेशन कर सकता है. समझा? मतलब मीनिंग इतना है कि हमारे पास पहले कुछ तो कुछ चीज था उसको हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट में कट किया है, तो ये इनफाइनाइट पार्ट में से एक पार्ट दिया है तो बाकी सब पार्ट को ऐड करेगा तो हमको पहले कहां से कट करके निकाला था वो मिल जाएगा और कौन सा चीज को हमने डिवाइड किया था वो मिल जाएगा. समझा? यस सर.
तो कोई भी चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकता है, मतलब कोई भी चीज है हम लोग उसको छोटा 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 पार्ट में कट कर सकता है। बट अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो एक्चुअली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, तभी तो इंटीग्रेशन करके आपको आंसर मिलेगा, समझ में आया? यस सर। बट अगर हमने जो पार्ट ले रहा है, इफ इट इज नॉट एन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा। So we cannot integrate all the functions, but we can differentiate all the functions. Only a product of differentiation can be integrated. Got it? तो अगर इसमें भी इंटीग्रेशन के लिए अगर एग्जांपल दो ना, लॉग का मतलब। या वही बोल रहा था। तो अगर मान लो इफ इट इज, उसमें क्या है कि 1/x का टर्म में आएगा। एक और हो सकता है कि उसमें फंक्शन इन फंक्शन आ रहा है, मतलब अभी अगर 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3 आ गया था, पहले हमने जो केस किया था उसका अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx करना है, तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1/x dx। तो 1 बाय इसको मतलब ये जो फंक्शन है उसको हम लोग इंटरनल फंक्शन जैसा कंसीडर कर सकते हैं। तो वी कैन राइट 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln of x। ln of x मींस ln of 2x + 3। ऑलराइट, उसके बाद इंटीग्रेशन हम लोग उल्टा करेगा, कौन सा टर्म को हमने x कंसीडर किया है इधर इसको डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करेगा, मतलब डिवाइडेड बाय 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो 2 से डिवाइड करेगा। समझा? यस सर। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करता है, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करता है। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। और सर वो लिमिट डालते ना, मतलब वो कैसे, मतलब जो उसका मतलब जो भी हायर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा। लाइक ओवर हियर सपोज द लिमिट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 2, तो पहले आप इसको इंटीग्रेशन करना है एज लाइक अ नॉर्मल फंक्शन 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, उसके बाद हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 2। करेक्ट? तो क्या करना पड़ेगा, पहले x का जगह पे हायर लिमिट पुट करना है। तो ln of x का जगह पे मान लो मैंने हायर लिमिट पुट 4 7 हो गया। 4 हाँ 7 ln of 7/2 माइनस ln of, अभी हम लोग क्या करेगा, x के जगह पे 1 पुट करेगा, तो 2 + 3 + 2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर रहेगा ln of 7 माइनस ln of 5/2। ऐसा सर लिमिट क्वेश्चन में सर दिया इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते हैं? क्या क्वेश्चन में देगा? हाँ, मतलब आपको अगर वैल्यू पता है तो कर सकता है। डिपेंड्स, तो हमको उसके लिए अगर आगे कुछ करना है तो we know the value of that ln of 7 and ln of 5। यस सर। तो ऑप्शन में तो कैसे ऐसा दिया नहीं कर इसको? सकता क्या, मतलब ln of 3/2? ln of 7/5 लिख सकता है। ln of a माइनस ln of b ln of a/b, उतना तो लिख सकता है। मतलब 2 को हमने कॉमन लिया, 1/2 इंटू इसको ln of 7 माइनस ln of 5, तो ln of a माइनस ln of b is ln of a/b होता है। तो इसको आप ऐसा ले सकते हैं, ln of a/b लिख सकता है। तो ln of 7/5 ले सकता है, 1/2 इंटू ln of 7 डिवाइडेड बाय 5 इतना लिख सकता है। यस। और कुछ डाउट है बेसिक मैथ्स में? नो सर। तो बेसिक मैथ्स का मैंने एक वर्कशीट भेजा है, तो नारायणा का बुकलेट में वो बेसिक मैथ्स का उतना मतलब ऐसा अलग से एक टॉपिक जैसा नहीं दिया है। मैंने दूसरे एक वर्कशीट भेजा है, तो उसको सॉल्व कर दो, जो भी डाउट है विल डिस्कस टुमारो। ओके ओके बाय सर। सर।